Hello students. Today we are going to start chapter 2nd of social science, that is Greenland, the land of ice and snow. Last time we have started another chapter, that is the map, and we have seen what is a map, what is the difference between globe and a map. Today we are going to read about a chapter that is related to uh, a landmark or a physical feature which is found nearby the polar region. So students, when we talk about this Greenland, we might think that it is a land which is covered by grass or which is densely covered by forest, but it is not so. The Greenland actually is covered with ice. It is actually a polar region. It is nearby Arctic circle. So let's quickly start this chapter. Now this Greenland is located nearby Arctic and North Atlantic Ocean. This Greenland is actually a country which is part of Denmark. It is located in Northern America or North America. Then this name Greenland was given by Eric the Red, and it lies in the polar region. And we know the polar region is the region which is extremely cold, and generally very few people used to live in this region, and that is why it is very less populated or very least populated. The Greenland has its capital as Nuuk, which was formerly known as or earlier known as Godhab. इसकी कैपिटल नुक है, जिसको हम लोग गॉडहब भी बोला करते थे पहले. आजकल जनरली हम लोग उसको नुक बोलते हैं. Now, when we talk about this Greenland, it is actually covered by ice or snow most of the time, or ice sheets. So here we have a map of Greenland. When we talk about the north, we have Arctic Circle here or Arctic Ocean here. When we talk about the east, we have Greenland Sea. In the south, we have Labrador or Labrador Sea. In the east, we have Greenland. In the west or to its west, we have Baffin Bay. I hope you can see this capital here, right? So this is the Greenland, which is mostly covered by ice throughout the year, we can say, or most of the time 10 to 11 months it is covered with ice or snow. Okay, so Greenland is actually a low plateau surrounded by coastal mountains which are always covered with thick snow. During springs, it has huge blocks of ice breaks, and these huge blocks of ice which actually broke from this ice sheets are called as iceberg. ये जो शीट्स से ब्रेक होते हैं बड़े बड़े आइस के टुकड़े, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसबर्ग. And you might have also heard about this incident, the sank of Titanic or the Titanic ship, which was one of the largest ship of the time, which happens in 1912. ये भी ऐसे ही किसी कारण से हुआ था. ऐसी ही एक आइस शीट थी जिससे वो स्ट्रक करा था और उसके बाद वो डूब गए पानी में. Climate, we know that it lies in the polar region, right? ये पोलर रीजन है या ये नॉर्थ पोल है, और इसी के पास में ये होता है. तो यहाँ पे बहुत सर्दी भी होती है, और डेफिनेटली 10 to 11 मंथ जो होते हैं इट इज कवर्ड विद आइस. वी हैव अ वेरी शॉर्ट सीजन ऑफ समर. जो समर होता है वो हार्डली 2 महीने का होता है, और तब भी टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास ही रहता है, विच इज एक्चुअली वेरी लो फॉर एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बीइंग इन द पोलर रीजन, Greenland experiences an extremely cold climate throughout the year. It has 9 to 10 months of winter
लगभग 10 से 8 से 10 महीने की यहाँ पे सर्दी होती है। When the temperature fall between the freezing point, और तब टेम्परेचर -30 डिग्री तक, -40 डिग्री तक भी जाता है, और इवन बिलो 0 डिग्री। समर आर ओनली फॉर 2 months. Nook, which is on the western coast, experience midsummer, which is 10 डिग्री। तो मिड समर होता है या हल्की फुल्की गर्मी होती है नुक में, जस्ट बिकॉज वो वेस्टर्न कोस्ट में है, और इसका जो ईस्टर्न कोस्ट है ग्रीनलैंड का, वहां पे कुछ ज्यादा सर्दी होती है। देन वी टॉक अबाउट वेजिटेशन। वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट्स एंड ट्रीज which are found in this region, that is Greenland. Now when we know when this is a polar region and it is generally frozen throughout the year, so very less vegetation is found here. बहुत कम ऐसे vegetation होंगे यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि actually climatic condition ही ऐसी है जो vegetation को support नहीं करती। so बहुत कम vegetation, मोजेस हो गए, लिचन हो गए, या कुछ bushes हो गई, कुछ झाड़ियाँ हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे जनरली मिलते हैं, वरना हमको टॉलर ट्रीज या ग्रासेस वगैरह ऐसा यहाँ पे नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज इट इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। देन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ। यस, वाइल्ड लाइफ इज फाउंड हियर, बट ओनली दोज एनिमल्स विच हैव अडेप्टेड टू सिचुएशन। यू कैन सी अ पोलर बियर हियर, और हमको पता है कि पोलर बियर जो होता है उसका एक बहुत थिक फर होता है, और बस ऐसे जो एनिमल्स हैं जिसके थिक फर होते हैं या जिनके ब्लबर होते हैं, जिनके काफी फैट होता है, काफी थिक स्किन होती है, बस यही सर्वाइव कर पाते हैं इतनी कोल्ड रीजन में, कि इतनी ज्यादा सर्दी में, और वही यहाँ पे मिलते हैं, राइट। द वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड इंक्लूड्स ओनली दोज एनिमल्स विच कैन सर्वाइव इन द हार्श कोल्ड क्लाइमेट, जस्ट लाइक रेनडियर, हस्कीज, आर्कटिक फॉक्स, मस्क एंड पोलर हेयर, सील्स एंड व्हेल्स। ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। ये हस्कीज हमको पता है ऐसे डॉग्स होते हैं विच एक्चुअली लुक लाइक वुल्फ, और जिनको यहाँ पे कैरियर की तरह भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग डेजर्ट में या हॉट डेजर्ट में यूज करते हैं कैमल्स को, कुछ वैसे ही यहाँ पे स्लेजेस को, या जो वुडन स्टिक्स होती है उसको कैरी करने के लिए, ठीक है, या उसको ड्रैग करने के लिए, उसको खींचने के लिए हम लोग यूज करते हैं हस्कीज को, राइट, विच इज एक्चुअली अ डॉग विच अपीयर्स लाइक और विच लुक लाइक वुल्फ, राइट। देन वी हैव लाइफ ऑफ द पीपल। डेफिनेटली अगर वहाँ पे कोलर रीजन है तो क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी हार्श है, और वेजिटेशन भी वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो लोगों की जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, और उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हॉट डेजर्ट में लाइफ होती है, वैसे ही यहाँ पे भी कोल्ड डेजर्ट में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है नहीं, रोड बहुत अच्छे हैं नहीं यहाँ पे, देन वेजिटेशन बहुत कम है यहाँ पे, लोग भी बहुत कम है, ठीक है। एनिमल्स कुछ यहाँ पे डेफिनेटली मिलते हैं, और यहाँ पे मेन जो चीज वो कंज्यूम करेंगे या उनका मेन जो फूड आइटम होगा वो डेफिनेटली फिश होगा या नॉन वेज होगा, ठीक है, या मीट होगा, जिसके कारण उनको थोड़ी सी हीट भी मिलेगी, राइट। ग्रीनलैंड इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ 57,600। अब ये लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन मिलती है। अगर हम लोग देखें तो काफी बड़ा एरिया कवर कर रहा है, पर जो पॉपुलेशन है इट इज ओनली 57,000, जो कि हमारी कोई एक बड़ी सिटी होगी तो वहां पे भी इतनी पॉपुलेशन होगी इंडिया की, राइट। तो उसके कंपेयर में यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और डेफिनेटली इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन है वो काफी हार्श है, टेम्परेचर बहुत लो है। द पीपल लीड अ वेरी हार्ड ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एज एस्किमोस या इन्यूट्स। अब यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं एस्किमोस, और इन्यूट्स भी हम लोग वर्ड उनके यूज करते हैं, ठीक है। अभी एनी हाउ वहाँ के जो लोग हैं वो काफी हद तक यूरोप की कंट्री के साथ में मिक्स हो चुके हैं, और हम लोग उनको बोलते हैं ग्रीनलैंडर्स, जस्ट बिकॉज यूरोप के पास में ही है, या यूरोप का नेबरिंग ही एडजेसेंट ही है, ठीक है। नाउ दे यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स विच आर मेड अप ऑफ सील स्किन। एक जानवर है, हमको पता है, जो तैरने वाला जानवर है, जो रेंगने वाला जानवर है, उसके स्किन से बना हुआ जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनते हैं, ताकि वो अपने आप को वो हार्श कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। देन फर, डेफिनेटली जो एनिमल्स की स्किन है या उनका फर है उसको वो लोग काफी यूज करते हैं, थिक फर को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्श कोल्ड से। देन
you can see a picture here in which these people are wearing a particular type of cloth, and this type of cloth where they have a type of hood is called as parka. ठीक है, ये काफी थिक फर होता है इनको सर्दी से बचाने के लिए. Now the official languages which are spoken here are Greenlandic and Danish. हमको पता है कि डेनमार्क के अंदर ही ये रीजन आ रहा है ग्रीनलैंड, और इसीलिए डेनमार्क की जो लैंग्वेज है डेनिश वो यहाँ पे बोली जाती है, और साथ में ग्रीनलैंडिक, ये ग्रीनलैंडर हम लोग जो उसको बोल रहे हैं. ठीक है, इंग्लिश इज ऑल्सो वाइडली स्पोकन हियर, एंड द मेन ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द पीपल आर फिशिंग, हंटिंग एंड माइनिंग. बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मेनली फिशिंग में इन्वॉल्व हैं वो लोग, या फिर हंटिंग, जो भी एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उनको हंट करना, एंड माइनिंग, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जब इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली उनको एक्सट्रैक्ट करने में भी लोग इन्वॉल्व हैं, और ये उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है. देन वी हैव इकोनॉमी. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मेनली द पीपल आर इन्वॉल्व इन हंटिंग, दे आर इन्वॉल्व इन माइनिंग, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमको यहाँ पे मिलते हैं. जस्ट लाइक वी हैव कॉपर, लीड, जिंक एंड यूरेनियम एंड प्लेटिनियम आर फाउंड हियर. इनके कुछ ओर्स हैं यहाँ पे, और हमको पता है कि ये काफ़ी रिच मिनरल्स हैं, ये काफ़ी वैल्यूबल मिनरल्स हैं. जस्ट लाइक हम लोग यूरेनियम की बात करें, जिंक की बात करें, लीड की बात करें, प्लेटिनियम की बात करें, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं, और उन सब में इन्वॉल्व हैं यहाँ के लोग, इनको एक्सट्रैक्ट करने में, उनकी माइनिंग करने में, उनको यहाँ से निकालने में, और उनको सेल आउट करने में, बेचने में. देन वी हैव फूड. हम लोगों को पता है कि जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लोग मीट काफ़ी कंज्यूम करते हैं ताकि अपनी बॉडी को लोग गर्म रख सकें, और फैट काफ़ी कंज्यूम करते हैं, ऑयली फूड काफ़ी कंज्यूम करते हैं. ठीक है, ताकि अपनी बॉडी को वो लोग गर्म कर सकें, रख सकते हैं. और ऐसे ही हमको पता है कि यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली उनको मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो रहेगा वो मीट के ऊपर डिपेंड रहेगा. जो फिश वगैरह है जो वहाँ पे अवेलेबल है, जो एनिमल्स है इसकी हंटिंग करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. द एस्किमोस, we know the people who live here are called as Eskimos. The Eskimos mainly depend on animals for food, as agriculture is possible only in 1% of the total land. यहाँ पे बहुत कम ऐसी ज़मीन है जहाँ पे एग्रीकल्चर करने लायक सॉइल है या क्लाइमेटिक कंडीशन है या एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल है. So vegetable like potato are grown in summer in south west coastal region. So जो साउथ ईस्ट का रीजन है वहाँ पे कुछ हद तक जब गर्मी होती है तब पोटैटो वो लोग ग्रो कर सकते हैं. उसके अलावा ऐसी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनके यहाँ है नहीं कि वो लोग एग्रीकल्चर या कोई क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ. देन वी हैव द पीपल आर एक्सपर्ट हंटर्स. एक आप यहाँ पे वेपन भी देख रहे होंगे, और इस वेपन को हम लोग बोलते हैं हार्पून. ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इट इज लाइक अ गन विच वी हैव हियर, एंड इट हैज अ एरो, एंड दिस इज व्हाट दे यूज फॉर हंटिंग, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज हार्पून. Nowadays, anyhow, they have started using gun instead of using this traditional weapon to kill the seal or fish or any other animal which they want to hunt. The people are expert hunter. Their main hunting weapon is harpoon, which we have here. This is called a harpoon, which is either thrown by a hand or fired from a gun. तो या तो हम लोग हाथ से उसको फेंक के यूज करेंगे, या फिर उसको फायर करेंगे हम लोग गन से, और हम लोग हंट करेंगे इन एनिमल्स को. वेल्स, सील एंड फिश आर मेनली हंटेड. तो ये वो एनिमल्स है जो जनरली यहाँ पे हंट करे जाते हैं, और इनका जो मीट है वो कंज्यूम किया जाता है. ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है. सो मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट, या हम लोग देखेंगे कि स्लेजेस जो हो गए जिसको हस्कीज पुल करते हैं, जो डॉग्स हो गए वो पुल करते हैं, ये मेन ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पे यूज करे जाते हैं. शिपिंग एंड एयर सर्विसेज आर मेन मीन्स, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, प्रॉपर रोड्स बने हुए नहीं है. इवन रोड्स बनेंगे भी सारी तो दोज वुड बी कवर्ड बाय ice or snow. Air transport exists both within the country and between the Greenland and the other nation. There are no roads. Eskimos use special boat called as kayaks for transporting
एंड हंटिंग एनिमल्स। तो ये कयाक आप देख रहे होगे एक पिक्चर यहाँ पे, ये छोटी सी बोट है जो जनरली मैन यूज करते हैं, जिसमें हार्डली एक जना या दो जना बैठ सकते हैं, और इसको हम लोग बोल रहे हैं कयाक्स। सो ये जो बोट्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, अवेलेबल नहीं है पानी के लिए, वो लोग यूज करते हैं इसको, कयाक्स को, ठीक है। देन वी हैव कयाक्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। कयाक्स होती है स्मॉलर बोट। इसके अलावा एक और वहां पे होती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं उमैक। अब जो लार्जर बोट है जिसको 8 to 10 पीपल यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं उमैक। इट इज अ स्मॉलर बोट, ये हम लोग रेफर कर रहे हैं कयाक्स के लिए। इट इज अ स्मॉलर बोट कवर विद स्किन, seal skin. Another type of boat used by Eskimos is umak. Its name means women's boat. Now umak is a bigger boat used for carrying women and children. Now this can carry 8 to 10 people. So एक तो kayak हो गए which can carry only 1 to 2 people and generally men, right? और women और children या ज़्यादा लोगों को कैरी करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे umak को. Then we have sledges. These are the sledges which we can see here. और ये जनरल रेनडियर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक टाइप का डियर जो यहाँ पे मिलता है, या फिर हस्कीज हो गए जो डॉग्स हैं यहाँ पे, वो इनको पुल करते हैं उन शीट्स पे या स्नो पे. Then we know that there are special type of houses which are found here, and these houses are made using snow as well. ठीक है, और उसका जो डोर है उसको काफी बॉटम रखते हैं, ये काफी नीचे रखते हैं, ठीक है, ताकि जो सर्दी है या हवा है या ठंड है वो वहां पे अंदर जा नहीं पाए, ठीक है. और अंदर उसको टेम्परेचर मेंटेन भी रहेगा, अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा भी होगा, और जो फ्लोर होता है उसको कवर करते हैं एनिमल स्किन से, ताकि वहां पे वो लोग रह पाए. स्पेशली ये बनाया जाता है विंटर में. समर के टाइम पे दे कैन लिव इन कैनोपी, या जिसको हम लोग टेंट बोलते हैं, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना के वो लोग रहते हैं या रह सकते हैं. इग्लूज आर स्पेशल हाउसेस मेड बाय एस्किमोस. अब ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इग्लूज. एक स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस जो कि पोलर रीजन में या बहुत ज्यादा जहां पे सर्दी पड़ती है वहां पे बनाते हैं. एंड दीज आउटर वॉल्स आर मेड अप ऑफ स्नो ब्रिक्स ओनली, वी कैन से, और स्नो. ड्यूरिंग द विंटर सीजन these are temporary shelters made of block of ice and cemented together with snow. An igloo has only one door which is quite low. आप देख रहे होगे कि एक ही दरवाजा है इसमें और वो काफी नीचे है, ताकि ठंड जो है वो अंदर ना जाए और अंदर का टेम्परेचर काफी गर्म रह सके, या बाहर के कंपेरेटिवली अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहे. The floor of the house is covered with animal skin. During the summer season, the Eskimos live in tent made of animal skin लाइक सील और रेनडियर. तो सील या रेनडियर की स्किन से बने हुए जो टेंट है उसमें वो लोग रहते हैं जनरली गर्मियों के टाइम पे. मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑफ एस्किमोस. वी नो दैट द लाइफस्टाइल ऑफ एस्किमोस हैव चेंज अ लॉट. वहां पे जो लोग रहा करते थे अब मॉडर्नाइजेशन वहां पे भी आ रहा है. पक्का घर या इलेक्ट्रिसिटी या परमानेंट हाउसेस उन लोगों ने भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, राइट. और काफी फैसिलिटीज अब वहां पे भी हो चुकी हैं, राइट. द लाइफ ऑफ एस्किमोस हैज चेंज द पास्ट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. नाउ दे हैव परमानेंट हाउसेस विद इलेक्ट्रिसिटी इन देम. अब लकड़ी के बने हुए या अलग मटेरियल्स के बने हुए हाउसेस वो लोग भी यूज कर रहे हैं, जो कि परमानेंट हाउसेस हैं, इन विच दे कैन यूज और विच दे कैन लिव फॉर थ्रू आउट द ईयर. सर्दी में भी और गर्मी में भी उसको यूज कर सकें वो. They consume tinned vegetable and milk imported from other part of the world. हमको पता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल होता नहीं है, पर बाहर से जो टिन्ड वेजिटेबल आ रहे हैं, ठीक है, उसको वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. हार्पून्स आर नो लॉन्गर यूज फॉर हंटिंग. हमने देखा था एक वेपन होता है हार्पून, जैसा एरो टाइप होता है, और फिर उसमें गन होती है जिससे वो लोग उसको शूट करते हैं, ठीक है. पर एनी हाउ अब वो हार्पून को की जगह वो लोग गन यूज कर रहे हैं. No longer used for hunting, instead rifles are used. Fur farms have been established to breed animals. Primary schools, hospital, libraries and clubs are present in most of the towns and villages. अब काफ़ी एडवांसमेंट वहाँ पे हो चुका है, और जैसी फैसिलिटी हम लोग देखते हैं वैसे ही कुछ लाइब्रेरीज, स्कूल
और फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है अब, कहाँ पे, ग्रीनलैंड में. बेटर एयर फैसिलिटीज विच connect Greenland to city of Europe and North America have brought by Greenlanders close to the rest of the world. अब ये अच्छी फैसिलिटी जो है ये यहाँ के लोगों को बहुत क्लोज लाई है बाकी वर्ल्ड के साथ में भी, नॉर्थ अमेरिका के साथ में भी और यूरोप की कंट्रीज के साथ में भी. ठीक है, ओके ओके. With this we come to the end of this chapter, that is Greenland. Students, I hope you have understood this chapter. We are going to come up with some another chapter next time. Till then, keep studying. Thank you.